Hello students, today we will discuss about explanations of Candida. Okay. Okay, आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशंस ऑफ कैंडिडा। फर्स्ट है दे आर ऑल इन लव विद यू एंड यू आर इन लव विद प्रीचिंग बिकॉज you do it so beautifully and you think it's all enthusiasm for the kingdom of heaven on earth and so do they. Okay. इसका जो है एक सेकंड से लिया गया, इसका रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट है दिस ट्रूथ रिवीलिंग speech is made by Candida in George Bernard Shaw. Pleasant place Candida here through this speech. Candida makes Morel realize that his lectures are hollow. People have no interest in his lectures, but it is his personality and the way of speaking that attracts them. ये सच्चाई उजागर करने वाला भाषण कैंडिडा के द्वारा जीवी शॉ के नाटक द्वारा दिया जाता है। इस भाषण के माध्यम से कैंडिडा मोरल को ये एहसास कराती है कि उसके भाषण खोखले हैं और लोगों को उसके भाषणों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सिर्फ उसका व्यक्तित्व, भाषण की कला है जो लोगों को आकर्षित करती है। ओके, नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन। कैंडिडा कम्स आफ्टर फिनिशिंग हर हाउसहोल्ड ड्यूटीज एंड फाइंड्स मोरल इन पेंसिव मूड। शी आस्क्स मोरल नॉट टू गो आउट एवरी नाइट फॉर लेक्चर्स बिकॉज पीपल आर इन लव विद हिज स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर्स। दे हैव no enthusiasm for his lectures. She clears that Morel loves preaching and people love his way of preaching because he does it beautifully. कैंडिडा अपने घरेलू कार्य निपटा लेती है और मोरल को उदास पाती है। वह मोरल से कहती है कि उसे हर रात भाषण के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि लोग उसकी भाषण कला को पसंद करते हैं, उन्हें उसके भाषणों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वह कहती है कि उसे उपदेश देने से प्रेम है और लोगों को उसके उपदेश देने की कला से, क्योंकि ये कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से करता है। नेक्स्ट है ये मार्चबैंक की स्पीच है। ओके, इफ़ आई वर अ हीरो ऑफ ओल्ड आई शुड हैव laid my drawn sword between us. If Morel had come in, he would have thought you had taken up the poker because there was no sword between us. ओके, इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है, ये एक्ट थर्ड से लिया गया है। ये स्पीच मोरल के द्वारा है, सॉरी मार्चबैंक्स के द्वारा, जो कि एक्ट थर्ड से ली गई है। These lines have been extracted from George Bernard Shaw. Morel has gone to deliver his lecture at Guild of St. Matthews. He goes there leaving Marchbanks and Candida. He believes that Marchbanks would behave like a gentleman and there would be no harm to Candida's chastity. Marchbanks and Candida are sitting in drawing room. Marchbanks is reciting poems while Candida's gauging the poker in her hand. ये पंक्तियाँ डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कैंडिडा से ली गई हैं। मोरल गिल्ड और संत मैथ्यू अपना भाषण देने गया है। वह कैंडिडा और मार्चबैंक्स को अकेला छोड़कर चला जाता है। उसे विश्वास है मार्चबैंक्स कैंडिडा के साथ सज्जनता से पेश आएगा और कैंडिडा की शुद्धता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मार्चबैंक्स कैंडिडा बैठक में बैठे हुए हैं। मार्चबैंक्स कैंडिडा के लिए कथित कविता पाठ
कर रहा है, जबकि कैंडिडा पीतल की हल्की आग की कुरेदनी हाथ में लेकर खेल रही है। उसकी दृष्टि कुरेदनी की नोक पर केंद्रित है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, इन मोरल्स absence Marjoribanks and Candida are sitting alone in the drawing room. Marjoribanks is reciting love poems. Candida pays no heed to his poems, but she keeps gauging the poker. It is past 10 in the night. Marjoribanks asks Candida how did she like the poem, but Candida regrets that she has been hypnotized by the poker. Marjoribanks says that poker in her hand looks like a weapon to protect her chastity. It reminds Marjoribanks of the ancient heroes who would place the naked sword if they were alone with an unknown woman. They did so to prove that women's chastity was safe. Moral believes that there would be no harm to Candida's chastity in the company of Marjoribanks. He is anxious to prove because the poker in Candida's hand is serving the purpose in place of naked sword. He further says that if Morel comes, he would see the poker in Candida's hand, and it would make him think that Candida took the poker in her hand to protect her chastity. Marjoribanks is satisfied because Morel's trust has not been broken. मोरल की अनुपस्थिति में मार्जोबैंक्स और कैंडिडा बैठक में अकेले बैठे हुए हैं। मार्जोबैंक्स कविता का पाठ कर रहा है, कैंडिडा उसकी कविताओं की ओर कोई भी ध्यान नहीं देती है। वह कुरेदनी को घूरती रहती है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। मार्जोबैंक्स पूछता है कि उसे कविताएं कैसी लगी, परंतु कैंडिडा अफसोस करती है और कहती है कि उसे इस कुरेदनी ने मंत्रमुग्ध कर दिया है। मार्जोबैंक्स कहता है कि उसके हाथ में कुरेदनी एक हथियार की भांति लग रही है जो उसकी शुद्धता की रक्षा के लिए है। ये कुरेदनी मार्जोबैंक्स की प्राचीन नायक की याद दिलाती है जो किसी अजनबी महिला के साथ अकेले होने पर अपनी नग्न तलवार को बीच में रख दिया करते थे। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे सिद्ध करना चाहते हैं कि महिला की शुद्धता सुरक्षित है। मार्जोबैंक्स कहता है कि उसके साथ कैंडिडा की शुद्धता सुरक्षित है। वह ये सिद्ध करने के लिए उत्सुक है क्योंकि कैंडिडा के हाथ में कुरेदनी नग्न तलवार का कार्य कर रही है। वह ये भी कहता है कि अगर मोरल आता है तो वह कैंडिडा के हाथ में कुरेदनी को देखेगा और समझ लेगा कि कैंडिडा ने ये कुरेदनी अपनी शुद्धता की सुरक्षा के लिए अपने हाथों में पकड़ रखी है। मार्जोबैंक्स संतुष्ट है क्योंकि मोरल के विश्वास को ठेस नहीं पहुंची है। ओके, नेक्स्ट है कैंडिडा की स्पीच है। ये भी एक्ट 3 से ली गई है। कैंडिडा कहती है, आई एम नॉट अफ्रेड सो लॉन्ग एज इट इज़ योर रियल सेल्फ दैट स्पीक्स एंड नॉट अ मेयर एटीट्यूड, अ गैलेंट एटीट्यूड और अ विक्ड एटीट्यूड और इवन अ पोइटिक एटीट्यूड। आई पुट यू ऑन योर ऑनर एंड ट्रूथ। ओके, इसका रेफरेंस है with context. This speech is a part of Candida Pleasant play of George Bernard Shaw. This expression of Candida is in reaction of Marjoribanks' passionate desire of being bigged with her moral is out to deliver his lecture and his absence. Marjoribanks and Candida are sitting alone in the drawing. Taking it as is an opportunity, Marjoribanks desires to say weak thing to Candida. Here Candida gives a witty answer. Okay, ये भाषण जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के सुखद नाटक के कैंडिडा का एक अंश है। कैंडिडा की अभिव्यक्ति मार्जोबैंक्स की कामुक इच्छा की प्रतिक्रिया में है। मोरल भाषण देने बाहर गया हुआ और उसकी अनुपस्थिति में मार्जोबैंक्स और कैंडिडा बैठक में अकेले
बैठे हुए हैं। मौका पाकर मार्जवेन कैंडिडा से कुछ दुष्ट बातें कहना चाहता है। कैंडिडा बहुत ही समझदारी से जवाब देती है। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन है। Morel has gone out of leaving Marjorie's and Candida behind. They are absolutely alone in the drawing room. He wants to take full advantage of the loneliness and desire to say some big things. She wants him to show his real self without being affected by the attitude of a brave man, a wicked man, or a fanciful poet. None of the attitudes can win her favor, but his true attitude can make him tell anything. मोरल मार्जवेंस और कैंडिडा को छोड़कर भाषण देने बाहर चला जाता है। वे दोनों बैठक में अकेले हैं। वैसे अकेलेपन का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है और कैंडिडा से कुछ दुष्ट बातें कहना चाहता है। वैसे अकेलेपन का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। कैंडिडा चाहती है कि वह अपना असली स्वरूप प्रदर्शित करे, ना तो वह एक बहादुर व्यक्ति, ना ही कोई दुष्ट व्यक्ति और ना ही कोई कवि हृदय वाला व्यक्तित्व प्रदर्शित करे। क्योंकि इनमें से कोई भी व्यक्तित्व उसकी कृपा दृष्टि नहीं जीत सकते। जो व्यक्ति का असली व्यक्तित्व ही होता है जो उससे बहुत कुछ कहलवा सकता है।